Hello students, welcome back to our English grammar class. How are you all? Fine? Okay beta. If you have seen my earlier videos, then in those videos we have discussed about sentences. In sentences we have discussed what types of they are and subject, object and predicate. What these things are basically we have discussed in our previous videos. So today we will start a new chapter. But before that I would like to tell you something else, that is parts of speech. As the name suggests beta, basically we are discussing about the parts of speech. And what is a speech? Whatever we talk. जो भी हम बात करते हैं वो क्या है हमारी speech. And in that speech we use many words to frame a sentence. Like I simply give you an example. The weather is nice. Here I have used almost 4 or 5 words, 4 words. So these 4 words are performing different functions in that sentence. And what those functions are, basically what are those sentence words are, we will discuss in part of speech. There are basically 8 part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are basically 8 parts of speech. All these 8 parts of speech work differently in a sentence, and I'll give you an example like my mother patted me on the back. My mother patted me on the back. Patted means thapthapana beta. So my mother patted me on which part of my body? At the back. Here the back is working as what? It is working as noun. The same word can be used as a different part of speech in a different sentence, like he backed out of the agreement. He backed out of the agreement. Here the same word back is used over here, and it is doing the action. Okay, whatever the action is done, it is done by this word. Means action is what? Backing out of the agreement. So here it is working as a verb. Then another one is basically we came from the back door. We came from the back door. So we came from which door? Back door. It is further describing the what type of door. So it is back door. So here it is working as what? It is working as an adjective. Okay. Another one is he came back from the market he came back from the market. So he came back. Here back is working as an adverb. Okay, it is further describing the verb came. Okay, so it is working as an adverb. So here we have seen that one same word, that is back. ये जो back word है यही सब चारों sentence में हमने use किया, but as a different role, in a different role. Here it is working as a noun, here it is working as verb, adjective and adverb. Okay, so basically बेटा कोई भी word जो है वो कौन सा part of speech है वो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है. उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है. दैट इज हाउ वी डिसाइड पार्ट ऑफ स्पीच बाय seeing the action that the word play in a sentence, the role the word play in a sentence. So today we will do a first part of speech, that is noun. So what is noun? Well, noun is basically beta naming words. Naming words are called as noun. Means the names which we give to persons, things, place, feelings or ideas, all these are noun. Like wall, curtain, floor, table, chair, lamp, mountain, valley, all these names are noun. Now noun can be further divided into
4 types. Okay, noun can be divided into 4 types. First one is proper noun. Second one, common noun. Third one, collective noun. And fourth one, abstract noun. Okay, these are 4 types of noun: proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. So now we will discuss these types in detail. First one is proper noun. What is a proper noun? क्या होता है proper noun? Well, proper noun is basically name given to particular things. Okay, name given to particular things. जो नाम हम particular चीजों को देते हैं वो होता है हमारा proper noun. Okay, proper noun is name given to particular persons or things. जैसे कि मैं कहूँ सीता, राम, इंडिया, गीता, हिमालयास. All these words are basically proper noun. How we will know that these words are proper noun? Well, their main characteristic is that they are a particular in themselves. They are unique in themselves. ये अपने आप में particular होंगे, unique होंगे. जैसे इंडिया है, it is one in itself. गीता, it is also one in itself. Book. Then Himalayas is also one in itself. Means these names or those names which are unique in themselves, which are particular in themselves, they are proper noun. Then our next type is common noun. Common noun, what is common noun? It is the name given to persons or things which belong to same kind. Okay, common noun is name or given to persons or things which belong to same kind. मतलब कि वो नाम जो persons के हैं या things के हैं और जो एक जैसे हैं, जैसे कि boys. Now जो boys हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये boys हैं. Then mountains, like Himalayas is what? It is a mountain. Okay. Aravali's क्या है बेटा? वो भी mountains हैं. तो ये जो Aravali's और Himalayas की main characteristic क्या है कि ये mountain है. So that mountain word is our common noun. राम, श्याम, रोहन, राहुल, ये सब जो नाम हैं ये किनके हैं? boys के. तो boy हमारा common noun है. Then book, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो या फिर जनरली हमारी साइंस और इंग्लिश बुक हो, वो सब क्या है बेटा? बुक्स हैं. तो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बुक. ओके, तो इस तरीके से जो नेम है पर्सन्स और थिंग्स के जो कि सेम काइंड के हैं वो हमारे आते हैं कॉमन नाउन में. देन नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? इट इज नेम गिवन टू पर्सन्स और नेम गिवन टू ग्रुप्स of persons or things. Okay, name given to groups of persons or things and spoken as whole. Okay, collective noun क्या होते हैं बेटा? जो नाम हम ग्रुप को देते हैं, चाहे वो पर्सन्स का हो या थिंग का, उस ग्रुप को जो हम नाम देते हैं और जब उस पूरे ग्रुप की बात होती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे कि क्लम्प ऑफ ट्रीज, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, bunch of grapes. यहाँ पर हमने किन की बात कर रहे हैं? ट्रीज के, क्लम की, मतलब पेड़ों के झुंड की. तो यहाँ पर क्लम क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन.
सोल्जर्स का क्या है, बटालियन, पूरी बटालियन की हम बात कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर सोल्जर की। तो यहाँ पे बटालियन वर्ड क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। देन ग्रेव्स, हम एक सिंगल ग्रेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप की, उसका जो पूरा झुंड है, उसका पूरा जो बंच है, उसकी बात कर रहे हैं। सो हेयर बंच, दिस इज आवर कलेक्टिव नाउन। क्लम, बटालियन, बंच, ये वर्ड्स क्या हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। और मोस्ट कॉमनली क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब बेटा हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम पूरी एक क्लास की बात कर रहे हैं। सो हेयर क्लास इज आवर कलेक्टिव नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, so now let's come to our next type, and that is abstract noun. What is an abstract noun? Abstract noun is basically name given to feelings, ideas, etc., which cannot be touched और सीन। वो नाम जो हम फीलिंग्स, आइडियाज या और किसी चीज को देते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, वो आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, जैसे कि हेट, लव, फ्रेंडशिप, bravery, all these words, okay, height, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कांट सी हेट, वी कांट सी लव, वी कांट सी फ्रेंडशिप, ब्रेवरी और हेट्रेड और सेल्फिश, वी कैन से। जो ये सारे वर्ड्स हैं बेटा, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम किसी के लव को महसूस कर सकते हैं, किसी की हेट को महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी की सेल्फिशनेस को भी हम महसूस कर सकते हैं, बट वी कांट सी दैट। सो ये सारे वर्ड्स हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Now beta, earlier we used to have 5 types of nouns and the fifth one was material noun. एक और टाइप होता था पहले, that is material noun. Material noun. Material noun क्या होता था बेटा, name given to raw materials which are further used to make something. ओके, पहले एक फिफ्थ टाइप भी होता था, दैट इज मेटेरियल नाउन, जो कि होता था नेम गिवन टू रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक समथिंग। वो नाम जो हम खाद्य पदार्थों को देते थे, रॉ मटेरियल्स को देते थे, जो कि एक अलग ही नई चीज बना देता था। ठीक है, जैसे कि वाटर, वाटर से हम क्या बना सकते हैं, टी, या फिर और भी कोई चीज। मोस्टली जो हम खाने की या फिर कोई और चीज बनाते हैं उसमें क्या यूज होता है, टी, सॉरी वाटर। देन शुगर, शुगर से हम स्वीट्स बनाते हैं, कॉफी, टी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी बनाते हैं उसमें हम शुगर एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना। देन गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी एसेट्रा। सिल्वर, आयरन एसेट्रा, ये सारे जो मटेरियल्स हैं जो कि किसी और चीज को भी बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। बट नाउन, देयर आर मेनी वेज इन विच अ नाउन कैन बी क्लासिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दिस थिंग। सो फर्स्ट वो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आएंगे, जो कि है 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा हमारा 2 टाइप्स का। इसमें पहले आता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन, सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एज द नेम सजेस्ट, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, इट कैन बी काउंटेड, इसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि मोस्टली जो हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है, मोस्टली जो हमारे कॉमन नाउन है, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, टेबल, चेयर एसेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं हम इनको गिन सकते हैं ना। माउंटेन्स को भी हम गिन सकते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे कॉमन नाउन है वो आते हैं काउंटेबल के अंदर। ठीक है, अनकाउंटेबल एज नेम सजेस्ट इटसेल्फ, व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम
गिन नहीं सकते। इसमें जैसे कि मोस्टली हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देख सकते हैं, ज्यादातर जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इसमें आती है लव, ब्रेवरी एसेट्रा। ये जो चीजें हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ये हमारी आती हैं अनकाउंटेबल में। बट यहाँ पे एक चीज याद रखने की है, देयर इज सम एक्सेप्शन टू दिस ऑल्सो। कुछ एक्सेप्शनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि काउंटेड हो जाती है, जैसे कि मेमोरी। मेमोरी को हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन से मेमोरीज। ओके, तो इस तरह से कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो कि एक्सेप्शन में आती हैं और वो हम बना सकते हैं काउंटेबल नाउन। बट मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारी आएगी अनकाउंटेबल में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट वन इन दिस पॉइंट। इसी के साथ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि ए, एन, फ्यू, मैनी, सेवरल। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ए, एन, फ्यू, मैनी, सेवरल। जैसे कि मैं कह सकती हूं मैनी बॉयज, few apples, a boy, an umbrella। ठीक है, इन सारे वर्ड जो नाउन है, बॉयज, एप्पल्स, बॉय, अम्ब्रेला, इन सब के साथ मैंने क्या यूज किया, मैनी, फ्यू, एन। ये वर्ड्स हैं जो हम इनके साथ यूज कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। अनकाउंटेबल में बेटा हम क्या यूज करेंगे, लिटिल, मच। ओके, इसमें हम वर्ड्स यूज करेंगे लिटिल, मच। जैसे कि लिटिल वाटर, देयर इज मच शुगर इन द टी। ओके, तो ये जो हमारी नाउन्स थी, वाटर, शुगर एसेट्रा, लिटिल, मच, इनके साथ हमने यूज किया। और ये किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। जो हमारे मैटेरियल नाउन है वो भी ज्यादातर किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। आया बेटा ये समझ में? ओके, नाउ एक चीज का ध्यान रखें कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम गिन नहीं सकते, बट हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे हम इस अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बना सकते हैं। मतलब हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन कन्वर्ट some uncountable noun into countable noun। ओके, कुछ अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग some words। और वो क्या है, देखिए, शुगर। शुगर हमारी क्या थी, अनकाउंटेबल नाउन। बट अगर मैं कहूं अ कप ऑफ शुगर, सो अब जो ये है अ कप ऑफ शुगर, ये क्या बन गया हमारा, काउंटेबल नाउन। पहले सिर्फ शुगर क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, बट जब हमने इस पूरे को लिया तो ये क्या बन गया, काउंटेबल नाउन। ठीक है, देन मतलब अब यहाँ पर 1 कप भी हो सकता है, 2 कप भी हो सकते हैं, 3 कप भी हो सकते हैं। सो वी कैन मेजर water, so a glass of water, many glasses of water we can say। तो यहाँ पर हमने इस water को क्या बना दिया, काउंटेबल नाउन। हाउ, बाय यूजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ I hope you both all understand this countable noun and uncountable noun, that what is this, countable is basically which can be counted, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे boys, girls etc. जितने भी हमारे कॉमन नाउन है ज्यादातर वो आते हैं हमारे काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें मोस्टली हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती हैं या फिर मटेरियल नाउन आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव, हेट्रेड एसेट्रा, फ्रेंडशिप। बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि काउंटेबल भी हैं, जैसे कि मेमोरी का हमने मेमोरीज कर दिया था।
देन another factor is we use some words with countable and वो क्या है a and few many several, ये वर्ड हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा ही क्या यूज करते हैं, लिटिल मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बार बार ये आएंगे ये वर्ड्स, तो इनको याद रखें। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि ये किस किस में यूज होते हैं, कौन से वर्ड काउंटेबल में यूज होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल में। देन कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करके, जैसे कि अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, मैनी ग्लासेस ऑफ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, उससे हम इनको काउंट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू आवर अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हमने दो तरह के क्लासिफिकेशंस देख लिए हैं। फर्स्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर किया, सेकंड में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउ देयर इज अनदर वन एंड इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट noun and this is concrete noun। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात नहीं कर रहे, हाँ सिमिलर से हैं, बट यहाँ पर ये दो अलग क्लासिफिकेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑल द थिंग्स which cannot be touched or seen but we can feel these things। okay, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम उन्हें फील कर सकते हैं, वो आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल जो नाउन था, बेसिकली फीलिंग्स जो थे हमारे, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी एसेट्रा, जो हमारे ये वर्ड्स थे, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी, वो इसी में आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही। इसमें हम क्या है बेसिकली कि इनको छू नहीं सकते, जो भी चीज है, कोई भी आप नाउन देख लो जिसको आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात नहीं है, अगर कोई और भी ऐसी चीज है जो आपको लग रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है बट उसे आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो वो भी हमारी किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे देख नहीं सकते और उसे छू नहीं सकते। कॉन्क्रीट नाउन में वो सारी नाउन्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, वो सारी नाउन जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मैटेरियल नाउन हो, हमारा कॉमन नाउन हो, बॉयज, गर्ल्स, ये सब हमारी क्या है, ये है हमारी कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, गोल्ड, वाटर, ठीक है, पहले कॉमन नाउन हो गया, देन हमारा मैटेरियल नाउन हो गया, इसको भी हम छू सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। नाउ आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया कि क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या कॉन्क्रीट। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप या ब्रेवरी। और कॉन्क्रीट नाउन क्या है, जो भी हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, चाहे वो कॉमन नाउन हो, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, वॉल, कर्टेन्स, बेड, ओके, मिरर, या फिर जितने भी हमारे मटेरियल्स नाउन हैं, जैसे कि गोल्ड, वाटर, शुगर एटसेट्रा, ये सब हमारी किसमें आती है, कॉन्क्रीट नाउन में। सो टुडे वी हैव डन नाउन, जिसके में बेसिकली नाउन क्या है बेटा, नेमिंग वर्ड्स, वो सारे नेमिंग वर्ड्स जो हम चीज़ों को देते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है हमारी नाउन। उसमें हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट में हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, जो हम पर्टिकुलर चीज़ों को देते हैं नाम। देन वी हैव डन कॉमन नाउन, वो नाम जो हम एक जो हम पर्सन या थिंग्स को देते हैं जो कि सेम काइंड को बिलोंग करते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा। देन हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, जो कि हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को नाम देते हैं और हम उस पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, ना कि एक सिंगल चीज की, जैसे कि क्लम्प ऑफ ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, शीट्स ऑफ पेपर्स, ये सारी क्या है हमारे नाउन। देन कलेक्टिव नाउन। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन था हमारा, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा फीलिंग्स और आइडियाज, वो सारी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम उन्हें महसूस कर सकते हैं।
देन अनदर क्लासिफिकेशन में हमने किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते, और कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, अ, फ्यू, मैनी, सेवरल एसेट्रा, और अनकाउंटेबल के साथ हम यूज करते हैं मैन, लिटिल, मच एसेट्रा। देन हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट वही है जिसमें हम नहीं छू सकते, जिसमें नहीं देख सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं। एंड कॉन्क्रीट नाउन जिसमें आप उन सारी चीजों को देख सकते हो, उन सबको छू भी सकते हो, वो आती है हमारी कॉन्क्रीट नाउन में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ नाउन। ओके बेटा, थैंक यू।